evening, friends. Thank you for all watching, and I'm inviting you all to this session. I've thought of making this video also, posted in FB also, just because of the some incidents which I have seen recently in the social media, committing of the suicide of a young actor. You all know that. This is a common thing which we can see in the society. ये आम बात है सोसाइटी में, हम इसको देखते हैं. And because of this, I thought of coming live and making this video also. The purpose behind that, इस वीडियो को बनाने का मकसद वही है, जो सोसाइटी में आजकल जो हो रहा है, यूथ जो फेस कर रहे हैं उसको लेके. And I like to give a caption also for this. It's a thought for the day. I am of infinite value because God loves me. मैं इसका एक शीर्षक भी देना चाहती हूँ. मैं जो particular telling when I speak of me, I am of infinite. मैं एक कीमती वस्तु हूँ बोल सकते हैं, because God loves me. क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करते हैं. And we should know that Lord has created us. उसने हमको सबको बनाया है. And God loves us. This is the thing we should know. ये बात को हमको जानना बहुत ही जरूरी है. And the common thing we face in the society that many people are in depression. Society में देखते हैं कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं. It's not necessary the youth are facing that problem. जरूरी नहीं है कि केवल जो युवा वर्ग है वही इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं. Many people in all the stages, all walks of life, people face this problem. हर एक व्यक्ति ये प्रॉब्लम को अपने जीवन में फेस करता है. And we all live in a society. हम सोसाइटी में रहते हैं. And in a particular phase of our life, we sometimes feel depressed. हमारे जीवन काल के एक पर्टिकुलर समय में ऐसा होता है कि हम बहुत ही निराशा में चले जाते हैं. We face many trials and difficulties. बहुत सारे हमारे जीवन में कठिनाइयाँ, परेशानी का दौर आता है. We face crisis. बहुत सारी दिक्कतें हमारे जीवन में हमको फेस करने का आता है. And sometimes we feel like sharing with others also. हमको कभी-कभी ऐसा लगता है कि इन बातों को हम शेयर करें, ऐसा भी लगता है. Sometimes we feel like keeping quiet. कभी-कभी हमको ऐसा लगता है कि कुछ ना करें, है ना, शांत रह जाए. But we all face these problems. हम सब जो है ये प्रॉब्लम्स को अपने जीवन में हम फेस करते हैं. तो that's the reason why I'm talking. मैं इसलिए ये मेरा जो बोलने का उद्देश्य यही है. And we should know that Lord has a plan for each and every individual. ये जानना बहुत जरूरी है. हम जब इस चीज को जान ले कि ईश्वर है, उसने हमको बनाया है और हमारे जीवन के लिए उसका एक पर्टिकुलर प्लान है. And one of the foremost thing we can remember, एक जो चीज हम सोच सकते हैं ऐसे दौर में, we can remember all our blessings. यदि मान लो बहुत ही निराशा की स्थिति में, तो हम कोशिश करें कि जो हमारे जीवन में जो ब्लेसिंग्स हैं उसको हम याद करने की कोशिश करें. We can look at our natural surroundings. हम ये भी देख सकते हैं, हमारी जो surroundings हैं उसको हम देख सकते हैं. We can sit, we can take time and sit and enjoy its beauty. हम थोड़ा समय निकाल के बैठ के उस natural surroundings को, beautiful place हमारी surroundings, हम उसको देख सकते हैं. And we should learn to sit. हमको बैठने की हमको आदत होनी चाहिए. And it's very difficult for us to sit. ये हम कुछ बैठने की जो हमको ये बहुत ही मुश्किल हमारे लिए है. We are all very busy. हम घर में भी रहते हैं, बहुत सारा हमारा काम होता है. We are all face, you know, so many in our house also we are very busy. We are doing all sorts of work. घरों में भी हम बहुत सारा काम को करते हैं. And if we learn to sit for a while, half the battle is win. We can win the battle. यदि हम बैठना यदि सीख जाए तो ये थोड़ा बहुत मतलब क्या है, इस समस्या से हम निकाल पा सकते हैं. It's very difficult for us to sit, but we all should try to sit. हमको बैठने की, हमको बैठ के, you should all learn to sit and relax. हमको बैठ के हमको रिलैक्स करने की, मतलब ये बातों को यदि हम
जान ले हमारे जीवन में, ये बहुत ही जरूरी है। We can be thankful to the Almighty God। मतलब हम जब उस बैठे हैं उस समय एक प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं कि Lord has given us this time। ये बैठने का समय भी प्रभु द्वारा निर्धारित है कि many people cannot sit, so we can sit। So that is a blessing that we can sit। Yeah, we can sit, we can be thankful for our family। हम जब बैठे हैं रिलैक्स होके तो अपनी फैमिली के बारे में हम सोच सकते हैं। वी कैन बी थैंकफुल, हमको फैमिली है, हम उसके लिए धन्यवाद कर सकते हैं। वी कैन फॉर आवर फ्रेंड्स, वी कैन बी थैंकफुल टू द लॉर्ड फॉर आवर फ्रेंड्स। सबको फ्रेंड्स हैं, प्रभु ने हमको सब फ्रेंड्स दिया, तो हम उस बात को लेकर धन्यवाद करें। वी कैन बी थैंकफुल फॉर आवर सोसाइटी। सोसाइटी के लिए भी हमको, मतलब सुंदर सोसाइटी में हम रहते हैं। वी कैन बी थैंकफुल फॉर आवर कंट्री, फॉर आवर नेशन। हम जो देश में रहते हैं उसके लिए भी हम धन्यवाद दे सकते हैं। वी आर ऑल फ्री, सबसे बड़ी बात है। एंड वी आर नॉट स्लेव्स। बहुत बड़ी बात हमारे लिए कि हम अपने राज्य में, हमारे प्रदेश में हम लोग सब फ्रीडम महसूस कर सकते हैं। हम लोग गुलाम नहीं है यहाँ पे। और हमारी इस बातों को वी कैन शेयर थॉट्स, हम बातों को रख सकते हैं। मेनी प्लेसेस पीपल डोंट हैव दिस फ्रीडम। लोगों को बहुत सारी जगह में ये फ्रीडम नहीं है, तो दिस इज अ ब्लेसिंग फॉर, ये हमारे लिए ब्लेसिंग है। यदि हम अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करें बैठ के, डिप्रेशन के समय भी हम ब्लेसिंग्स को काउंट करें, तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब इट विल बी हेल्पफुल टू अस। और ये वी शुड लर्न टू काउंसिल अदर्स। ये भी बहुत बड़ी बात है कि हम दूसरों को हेल्प करें, काउंसिल करें, दूसरों को भी हम मदद कर सकते हैं। who is in need, we can take some time for others also। हम दूसरों के लिए भी थोड़ा सा समय दे सकते हैं। Nowadays we can see we are all busy in this world। हम सब बहुत ही busy है। We all should learn to give our time। हम थोड़ा सा समय देने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं। टाइम इज प्रेशियस, टाइम इज वैल्यूएबल। टाइम जो है बहुत ही कीमती है। आज किसी के पास समय नहीं है, लेकिन बट वी शुड लर्न टू कीप दिस टाइम। ये टाइम को थोड़ा सा हम दे सकते हैं। हम सोच सकते हैं कि कैसे हम समय को दें। हम अपने लोगों के लिए जो साथ में हम रहते हैं, जिसके साथ है, मान लो हम किसी को मैसेज कर रहे हैं, किसी को उस मैसेज के द्वारा भी it's great benefit to that person। हम किसी को मैसेज कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं, this is the blessing to that person। I'm of a Christian faith and the Bible says you should not only think of yourselves, think of others also। ये को केवल अपने तक ही हमको अपने सोच, हर चीज अपने तक ही सीमित नहीं रहना है। हमको कुछ ऐसा भी दूसरों के लिए भी समय देना है, बोलना है, बताना है। बहुत सारे लोगों को वो एक हेल्प हमारी तरफ से हो सकता है। वी कैन ऑल मेक दिस अर्थ अ ब्यूटीफुल प्लेस। हम सब मतलब इस प्रकार से जो प्रयास करके इस जो जगह हम जहाँ रहते हैं, क्या हम इसको एक सुंदर जगह बना सकते हैं। वी कैन गिव by this we can make this place better place by giving our little contribution। थोड़ा सा हम अपने आप contribute करके इस जगह को हम बहुत सुंदर बना सकते हैं। We can contribute others, मतलब counseling others and helping others, मतलब दूसरों को counsel करना, दूसरों को help करना, ये हम कर सकते हैं। And one more most important thing is praising God, Almighty God, मतलब ईश्वर को मतलब धन्यवाद करना, प्रेस करना, वो भी बहुत बड़ी बात है। हमारी वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ईश्वर ने हमको हर चीज़ जब दिया है आज के दौर में, वी आर ऑल हैप्पी, वी आर ऑल सेफ, तो वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड। एंड फाइनली आई वुड लाइक टू से, आई वुड लाइक टू दिस मेन मतलब माय फोकस वाज फॉर दोज कंसिडरिंग सुसाइड। हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग आसपास जो है सुसाइड वगैरह करते हैं। उसमें I have heard that sometimes suppose a person in depression is going to attempt a suicide। मैंने ये बात भी सुना है कि कोई डिप्रेशन में कोई व्यक्ति रहता है और वो सुसाइड करने जा रहा है अपने कमरे में। ही इज अलोन इन हिज रूम, उसको कुछ सूझ नहीं रहा है, वो अकेले कमरे में है। बट एट दैट टाइम इफ सपोज ही हियर्स अ नॉइज,
it may be of a doorbell, it may be of a mobile calling, तो his thought can be changed. मैंने ये भी सुना है कि मान लो कोई व्यक्ति अकेले कमरे में है और वो अपनी उसकी सोच है सुसाइड करने की, तो उस समय मतलब उसको कुछ नहीं सोचता, बस वही एक उसके मन में रहता है। एट वो पर्टिकुलर समय में यदि उसको किसी का फ़ोन कॉल आता है या किसी का मैसेजिंग उसको आता है या उसको कोई बुलाता है, तो उसका जो माइंड वो है वो डाइवर्ट हो जाता है। तो इन दैट वे वी कैन हेल्प मैनी पीपल। वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन द सराउंडिंग। हमको ये नहीं पता है कि हम हमारी सराउंडिंग में क्या हो रहा है और हम कैसे किस प्रकार से किसी को मदद कर सकते हैं। मे बी बाय टेक्सटिंग समवन, मे बी मतलब किसी को मैसेज करके हम किसी को वी मे हेल्प अदर्स, किसी को बोल के किसी से मिल के हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं। एंड फाइनली आई वुड लाइक टू थैंक गॉड फॉर ऑलवेज बीइंग। ईश्वर को हमको निरंतर धन्यवाद देना है कि he is always with us, he is a loving God, and let us learn to encourage one another. हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए मतलब करने की कोशिश करें, and let us look for opportunities to share hope and with those who suffer. हम उनके साथ भी मतलब हमारी शेयरिंग हो, जो एकदम से मतलब कुछ अपॉर्चुनिटीज को जो खोज रहे हैं, एंड दोस्तों सफर मतलब कोई किसी ऐसी परिस्थिति में है जो है, उनके लिए भी हम मतलब समय निकाल के उनको भी यदि प्रोत्साहित करें, तो इट विल बी ग्रेट जॉब फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू all of you for watching. Let Lord help each and every one of us to help others, to give our time to others, so that we can make this place, we can make the earth a beautiful place to live. Thank you for all for watching. God bless you all. Thank you.